चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पलर कर रहे थे हम, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पलर को. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ जी बच्चा बोलिए. यस मैम अगर मैम जैसे आप स्क्वायर की बात कर रहे हो मैम, जैसे मैम मतलब 7 का अगर स्क्वायर में 49 होगा मैम, 7 7 से. यस यस. Now calculate the mean, median and mode of the following data. So what is the mean? Sum of the terms divided by number of the terms. 10 plus 10 20, 12 plus 13 25 plus 5 30 plus 20 is 50. Number of terms are 5. So mean हमारे पास आ गया 10. Mod, what is the mod? Ekam, what is the value of mod here? डेटा को अरेंज कर देती हूँ मैं यहाँ. अरेंज डी फॉर्म में है. ओके हाँ जी एकम. व्हाट इज मॉड? मैम द मॉड इज जी. व्हाट इज मॉड? मॉड इज द वैल्यू मैम 5 maximum number of times. मैम Yes, mod is Virat. What is mod? Ma'am, can I tell Virat? Ma'am, the number that occurs most of the time in the day. Yes. So what is the mod? Ma'am, the number with the most times of मैम सारे बीच में मत बोलो, मुझे किसी का कुछ भी समझ नहीं आएगा. वन बाय वन जिससे पूछूंगी वही आंसर देंगे. यस एकम, व्हाट इज द मॉड हियर? मैम 10 10 because 10 is coming 2 times. Okay. मीडियन का फॉर्मूला कौन बताएगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड के लिए? यस विराज, टेल मी द फॉर्मूला फॉर द मीडियन. वैल्यू ऑफ विराज. कैन आई टेल? जस्ट अ मिनट एकम. विराज, टेल मी द फॉर्मूला. विराट. Ma'am, value of n plus 1 by 2. N by 2 term. N is 5 plus 1 6 by 2. That is third term. Okay. Ekam, what is the third term? Ekam, मैम what? what is the third term for the median? Yes. Third term first, second and third. Third term is 10. So mean. अब उसने पूछा. मैम your voice crackling. Yes, mean, median and mod have same value. Okay बच्चा. Okay, okay. Ma'am, can you hear me? Yes बच्चा, I can hear you. Let us move to the next question. इस क्वेश्चन में हमें मीन, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना था और बताना था क्या सबकी सेम वैल्यू है. यस, मीन, मीडियन एंड मॉड हैव सेम वैल्यू. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, बताएंगे फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं? कौन बताएगा? विराट, कैन यू टेल मी? 1 2 4 6 8 10. यस. 12 14 16 18 20. Yes. Formula for finding mean, Viraj. What is the formula for finding mean, Viraj? Can you hear me, bacha? Mean is equals to? Ma'am, can फॉर्मूला बताइए विराज मीन के लिए. Formula for finding mean is sum of observation divided by total number of observation. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quickly find करेंगे sum इनका जल्दी से. Divided by 10 क्योंकि हमें 10 टर्म्स का मीन फाइंड करना है. 2 plus 4 6 plus 6
12 plus 8 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 तो ये आ गया. 8 plus 6 14 plus 4 18 plus 2 20. So 110 is the sum. So 110 divided by 10. So mean 11. चले नेक्स्ट पे. A data. हाँ जी बच्चा. Ma'am, please show the previous slide. Ma'am, जी बच्चे. ma'am, can you also show the 50th question? I missed it. Ma'am, can you properly hear me? Yes बच्चा, I can hear you. Moving to the next one. Ma'am, done. A data constitutes of height of 50 children. What do you understand by mod for the data? हाँ जी. तो mod के लिए क्या कहेंगे? The height that will occur maximum number of time. That will be the mod. The height that will occur maximum number of time is mod. कह रहे मॉड क्या होगी? 50 स्टूडेंट्स में से जितने जो हाइट ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की होगी, दैट विल बी मॉड. नेक्स्ट वन. A car seller collects the following data of cars sold in his shop. Which color of the car is most liked? Who will tell me? Ma'am, can I tell Viraj? Yes, बताइए. Ma'am, it's black, ma'am, because the 20 cars color of black are Here. So black car is most liked. Which measure of central tendency was used in A? कौन सी measure use किया है? Yes, Virat, can you tell me? mod. Mod. So mod is used क्योंकि mod क्या बताता है कि कौन सी टर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आई है. सो ब्लैक कार मैक्सिमम सोल्ड हुई है, तो दैट इज mod here. The marks in a subject for 12 students are as follows. For the given data, find the range, mean, median and mod. सबसे पहले डेटा को अरेंज करके लिख लेते हैं. 17, 18, 29, क्योंकि हमें रेंज भी फाइंड करनी है एंड मीन, मीडियन, मॉड भी. 25 is there before 29. 25, then 29. After that, 23 is also before. yes, 23 is also there. So 18 के बाद 23. Okay, 29, 31 के बाद 35 is 1, 2, 3 times. After that 37, 38 and 42. Check the number of terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. तो हमारी number of terms है complete. 12 terms are there. 17, 18, 23. First part में हमें find करना है range. So what is the range? Highest value minus lowest value. अब formula एग्जाम में तो देखो आपको एक या दो क्वेश्चन आएंगे किसी भी तरह के, तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है. नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा? 42. मिनिमम वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू इज 17. सो 12 minus 7, 3 minus 1. मीन फाइंड करते हैं. मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 12. सो ऐड करेंगे सारी टर्म्स को. टेल मी द आंसर क्विकली एवरीवन. सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या आया. Ma'am, I've written in the chat box. जस्ट अ मिनट बच्चा. Ma'am, 365. ओके. 25, 29 मैं सोन लिख के 42 तक लिख रही हूँ, पूरी टर्म्स नहीं लिख रही. 365 अपॉन 12. 12 3s are 36. 2 डिजिट्स एक साथ उतारेंगे तो 0, 50. 12 6 are 48. 30.6 इज द मीन. सभी का यही आया? यस और नो? तो क्या आया? Yes, ma'am. यस विराट. 12 6 are 48 ना.
365 आया अगर तो, मैम 12 4 से 48 सॉरी 12 4s are 48, 12 6s are 72. Yes, 30.4. मैम फिर 2 बचेगा 30.4. मैम 30.41 Yes. So next हमें फाइंड करना है मीडियन. So मीडियन फाइंड करने के लिए अब n is equals to 12. नंबर ऑफ टर्म्स आर even. So मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? वैल्यू ऑफ n by 2, n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. n is 12, 12 by 2 is 6th term, 6 plus 1 7th term divided by 2. That will be the median. So what is the 6th term now? 1 2 3 4 5 6 is 31, 7th term is 35. So 31 plus 35 divided by 2. अभी तक हमने जो NCERT में क्वेश्चन करे थे वो सारे ही ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए थे. 5 plus 1 3 plus 3. So median is 33. Is it right? मीडियन सबका 33 आ रहा है. And what is the value of mode now? The value that occurs maximum number of times. 35 is coming 35. 3 times. So mode will be 35. तो हमें रेंज, मीडियन एंड मॉड फाइंड करना था. मीडियन के लिए नंबर ऑफ टर्म्स इवन थी, सो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. वैल्यू ऑफ n by 2th term plus n by 2 plus 1th term. 12 by 2 6th term, 6 plus 1 7th term divided by 2. 6 term 31, 35 divided by 2. अब देखो जो मीडियन 33 आया, लेकिन डेटा में तो मेरे पास 33 वैल्यू ही नहीं है. इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए तो हमने उसमें पढ़ा था ट्रू फॉल्स में भी कि मीडियन मे और मे नॉट बी फ्रॉम द डेटा. अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मीडियन पक्का है कि डेटा में से ही एक वैल्यू होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जरूरी नहीं है कि मीडियन की वैल्यू डेटा में से ही हो. इसमें हम वन टर्म और सेकंड मैम उसकी जगह मैम सेकंड और फर्स्ट टर्म लिखना चाहिए ना. कहाँ पे बच्चा? मैम जैसे आपने बोला टूवर्ड्स टर्म और वन टर्म, मैम तो फिर उसकी जगह फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिख सकते हैं. कहाँ पे बच्चे फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हैं? मैम जब हमने मीडियन फाइंड किया था उसमें. किसमें? मैम जैसे आपने बोला था ना कि वनथ टर्म. वनथ टर्म तो नहीं बोला बच्चा. आपने भी बोला 6th टर्म एंड 7th टर्म ना. मैंने उससे पहले जो फार्मूला लगाया था उसमें. किसमें फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चा हमने? मैम मीडियन में जब इवन का हमने फार्मूला लगाया है Yes. n by 2 plus 1. n by 2 plus 1th term. मैम तो फिर हम उसे फर्स्ट टर्म क्यों नहीं लिख सकते? नहीं 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 अप्रोप्रिएट तो वही लगेगा. नहीं, फर्स्ट टर्म नहीं बच्चा. 6 में प्लस 1 होगा, n by 2 में प्लस 1 होगा. n plus 1 by 2th term नहीं, n by 2 plus 1 term. This is the formula. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. The following are the weights of 12 people. Find the mean of the weights. Okay, mean तो मतलब हमने सब में ही निकालना है. So mean sum of the observation 12 people का है. So जल्दी से कैलकुलेट करेंगे. 70 plus 62 plus 54 plus 57 plus 62 plus 84 plus 7. जैसे मैंने आपको इजी वे में सिखाया था कि 100 वाले टेंस वाले प्लेस को ऐड कर लो, फिर वंस वाले, वैसे करोगे तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी. 788 upon 12. ओके 788 you are saying. Okay, let me write 788 upon 12. 12 6s are 72, 68. 12 5s are 60, 8 is the remainder 80, 12 6s are 72, 65.6. Yes. How many people weigh above the mean weight? Yes, Ekam, you will tell me the answer. कितने लोगों का वेट मीन वेट से ज्यादा है? 70, 65.6 से ज्यादा है, 84, 75, then 78. So 1, 2, 3, 4 people have weight more than the mean weight.
ठीक है, 4 people have weight more than mean weight. What is the third part now? Find the range of the data. You can easily find the range. Highest value minus lowest. 36. Highest value in the data is 84. Ma'am, 90. Ma'am, 36 is the answer. 90 कहाँ है बच्चा? 90 is not there. मैम एंड में 78 के बाद 60 है बच्चे वो. ओके, मैंने यहाँ पे गलती से 90 लिख दिया. It is 60. मैम 60. मैम सॉरी 84 minus 54. Lowest term is 54. Okay. 4 minus 4 0, so 30 is the range. ठीक है, इस डेटा का मीन फाइंड करना था. उसके बाद बताना था कितने पीपल ऐसे हैं जिनका वेट अबव द मीन वेट है, मीन वेट से ज्यादा है, और उसके बाद रेंज फाइंड करना था. नेक्स्ट वन, फॉलोइंग कार्ड्स आर पुट फेसिंग डाउन. AEIOU कार्ड्स पे लिखा है, उसका फेस डाउन करके उसे रखा गया है. व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग आउट अ वोवल? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ वोवल. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? टोटल कितने कार्ड्स है? मैम 1 चांस. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5. मैम 5. और वोवल आए उसके चांसेस कितने हैं? मैम 5. 5, क्योंकि पांचों ही वोवल गिवन है. सो 5 by 5 sorry, so probability of getting a vowel is 1. B part is या तो A आए या I आए. A आने की probability कितनी है? A कितनी बार आ रहा है कार्ड्स में? एक ही कार्ड पे तो A लिखा है. So probability of getting A is 1 by 5. I भी एक ही कार्ड पे लिखा गया है. So total probability of getting A or E is 2 by 5. Probability of getting a card marked U. कार्ड जिसपे U लिखा हो, एकम, बताएंगे probability उसकी. एकम Yes, ma'am. बताइए probability of getting a card having letter U. जिस कार्ड पे U लिखा है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने कार्ड्स हैं जिन पे U लिखा हुआ है? Ma'am, 1. 1. टोटल आउटकम्स 5. 5 में से एक 5. कार्ड पे U लिखा है, सो 1 by 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट. यस विराज. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, बाकी सारे कॉन्सोनेंट. लेकिन यहाँ तो 0 चांस लिखा ही नहीं हुआ. So 0 upon 5, that is 0. Probability of getting a consonant is 0. ठीक है? Clear everyone? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे. For the given data below, calculate the mean. Yes, ma'am. ध्यान से इसकी स्टेटमेंट देखेंगे. कैलकुलेट द मीन, लेकिन किसका? ऑफ इट्स मीडियन एंड मॉड. इस डेटा का पहले मीडियन एंड मॉड फाइंड करेंगे. मीडियन और मॉड का जो आंसर आया उसका मीन फाइंड करना है. इस डेटा का मीन फाइंड करने के लिए नहीं कहा, मीन ऑफ इट्स मीडियन एंड मॉड. सो सबसे पहले डेटा को करेंगे अरेंज. 2 2 3 3 4 4 4, then 5 and 6. चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 4 5 6 7 8 9 terms are there. So what is the mod? Viraj. Yes, Viraj. What is the mod here? Viraj. Can you hear me, बच्चा? एकम Yes, ma'am. बताइए मॉड क्या होगा इस डेटा का? Mod is the value that occurs maximum number of times. So 4 is coming. 3 Ma'am, 4. Mod is 4.
अब हमें फाइंड करना है मीडियन. नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, so median is value of n plus 1 by 2th term. So fifth term 1 2 3 4 5th, so median आ गया 4. अब हमें मीन फाइंड करना है मीडियन और मॉड का. मतलब मेरे पास दो टर्म है, मीडियन एंड मॉड, दो टर्म्स है. सो मीन विल बी number of sum of observation divided by total number of observation. I have two observations, median and mod, इसलिए divide by 2. median की वैल्यू आई थी 4, mod की वैल्यू आई थी 4. 4 plus 4 8 upon 2, so mean will be 4. Clear? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी थी कि मीन ऑफ इट्स मीडियन एंड मोड फाइंड करना था. अगर आप इस डाटा का फाइंड कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट वन, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा गिवन इफ द मीन इज दिस. पहले मीन गिवन है, फिर मुझे फाइंड मीडियन करना है. सो सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं. मीन की वैल्यू गिवन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 plus 7 plus 7 plus 8 plus x plus 5 plus 4 plus 3 plus 1 plus 2. How many terms are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 terms are there. Add करेंगे quickly. 7 plus 5 12 plus 7 19 plus 8 27 plus 4 31 5 36 39 40 and 42. 10 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे. 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 45 हो जाएगा. सो 45 इज इक्वल्स टू 42 प्लस x. यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड की 45 माइनस 42, तो x आ गया 3. अब x3 आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन. तो पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा. 1 2 3, अब 2 टाइम्स हो गया, x की जगह पे 3 आ गया. Then next term is 4, 5 2 times, 7 2 times and 8. Number of terms 10 थी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now n is 10, which is an even number. So apply the formula for the median. Value of n by 2, 10 by 2, that is fifth term, plus n by 2 plus 1, 5 plus 1, sixth term, divided by 2. So fifth term plus sixth term. So let us do it. Fifth term plus sixth term. So what is the fifth term now? 1 2 3 4 5. Fifth term is 4 and this is 5. So 4 plus 5 divided by 2. So 9 by 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10. So median हमारे पास आया 4.5. Clear to everyone? Is it clear? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Yes. What is the probability of sun setting tomorrow? Who will tell me? Probability of sun setting tomorrow क्या होगी? क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? सोचो. एनी वन ऑफ यू? सन जो है हर रोज सेट होता है. अगर हर रोज सन ईस्ट से राइज होता है तो वेस्ट में सेट भी होता है. मींस ये तो पक्का है कि ये काम होगा ही. certain event. So what is the probability of certain event? The sure event. That is always 1. Ma'am, 1.
Probability of sure event is 1. So probability that sun will unsetting tomorrow is 1 because this is a certain event. When a spinner with 3 colors is rotated, which color has more chance to show up with arrow than others? कि इनमें से कौन से कलर का सबसे ज्यादा चांस है आने का? बताइए. रेड, आर, बी या मैम येलो. Why? Because मैम बिकॉज इट हैज द मोस्ट फ्रैक्शन. it has more space, है ना? It has occupied more space than any other color. इसके पास एरिया ज्यादा है, जब हम कह सकते हैं it has more area than any other color. ठीक है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है तो उसके चांसेस ज्यादा है. Let us move to the next one now. What is the probability that student chosen at random out of 3 girls and 4 boys is a boy? Total number of students कितने हो गए? जब भी probability find करते हैं, total number of outcomes हम denominator में लिखते हैं. 3 girls थी, 4 boys, तो total 7 students है. उसमें से probability of getting a boy कि क्या चांस है कि boy आए? How many boys are there? 4. So 4 upon 7 is the chance of getting a boy from 3 girls and 4 boys. Next one, the letters written on the paper slips of the word median are put in a bag. मीडियन वर्ड के सब लेटर्स को अलग अलग स्लिप पे लिख के बैग में डाला गया है. इफ वन स्लिप इज ड्रॉन रैंडमली, एक स्लिप उठाई जाती है, what is the probability that it bears the letter D? हाँ जी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मीडियन में? 1 2 3 4 5 6. अब कौन कौन से हैं? M E D I A N. अब D कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है. सो प्रोबेबिलिटी डैट जो हमने स्लिप उठाई उस पे D लिखा हो, डेट इज 1/6. अब आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट बियर्स अ लेटर A? यस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट बियर्स द लेटर A? कि जो स्लिप उठाई उस पे A लिखा हो, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? मैम 1/6. यस, 1/6, क्योंकि A भी एक ही बार आ रहा है 6 लेटर्स में. नेक्स्ट वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इवेंट एज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन, मे और मे नॉट हैपन. फर्स्ट, getting a number less than 1 on throwing a die. मैम इम्पॉसिबल टू हैपन. इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि डाइस में नंबर्स 1 से ही लिखे होते हैं. 1 से लेस मींस 0 तो उस पे होता ही नहीं. गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड. मैम मे और मे नॉट हैपन. यस, मे और मे नॉट. हो सकता है हेड आए, हो सकता है ना भी आए. सी, अ टीम विनिंग द मैच. टीम मैच मे और मे नॉट हैपन. मैम हो सकता है मैम मे और मे नॉट. कि हो सकता है मैच जीत भी जाए वो टीम, हो सकता है ना भी जीते. क्रिसमस मैम डी इज सर्टेन इवेंट. मैम सर्टेन टू हैपन. सर्टेन टू हैपन कि ये तो पक्का है कि 25th को ही होगी. टुडे मून विल नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन. मैम इम्पॉसिबल टू हैपन. क्योंकि ये मैम तो इम्पॉसिबल. Let us start with the next question. 64. A dice was thrown 15 times and the outcomes recorded as. पहले हम डेटा को अरेंज कर देते हैं. 1 1 1 1 2 3 2 1 2 3 4 times 2. Then 3 is 1 and 2. After that 4 1 2. 5 is 2 times. 6 is 2 times. Okay.
15 terms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terms are complete. Now we want to find the mean sum लेते हैं इनका upon 15. Direct sum लिख रही हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus 3, 14 plus 3, 17 plus 4, 20. 1 plus 4, 25 plus 5, 30, 35 plus 10. 45 and 2, 47. So 47 upon 15. Add करके आया. 15 threes are 45 to 20. 15 twos are, sorry, 15 twos are 30. 20 remainder बचा. So 15 ones are 15. So this will be the mean. ठीक है. Next हमें find करना है median and mod. Mod is the value that occurs maximum number of time, that is 2. Number of terms are odd, so median के लिए formula apply करेंगे. Value of n plus 1 by 2, n is 15. So 15 plus 1 by 2, 16 by 2, that is 8th term will be the median. So what is the 8th term now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So median is 3. दोबारा से बता रही हूँ. एक डाइस को 15 टाइम्स थ्रो किया गया, आउटकम्स लिखी गई, मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों फाइंड करने हैं. सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज फॉर्म में लिखा. मीन के लिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस किया, दैट इज 47. टोटल टर्म्स आर 15. 15 threes are 45. So 7 minus 3 is 4. 7 minus 5, sorry, 15 threes are 45, 2 is the remainder, 20, 15 ones are 15. 3.1, mod 2 is occurring maximum number of times, so mod is 2. Median number of terms odd hai, n is equals to 15, which is an odd number. So median is value of n plus 1 by 2th term, that is 8th term. So 8th term is 3, so median is 3. Moving to the next one, find the mean of first 6 multiples of 4. Yes, first 6 multiples of 4 कौन-कौन से होंगे? Ma'am, Yes. 4, 8, 12, 16, 20 and 24. Yes, these are first 6 multiples of 4. हमें इनका क्या find करना है? Mean. So mean is sum of the observations divided by total number of the observations. So 6 multiples लिए हैं. So total number of the observations are 6 here. 8 plus 4, 12 plus 12, 24. 24 plus 24, 48 plus 20, 68 plus 12. So 80. So 80 upon 6. 2 3s are, 2 4s are 8, 40 upon 3, 13, 3 1s are 3, 10, 3 3s are 9, again 10, so 3 3s are 9. So 13.3 is the mean of first 6 multiples of 4.